dispute arising out of that contract. How this dispute is going to be resolved? In contracts, I have noticed from my experience, those contracts जिसमें कि dispute resolution clause नहीं होता है, those parties suffer a lot, and that's why we recommend the clients that whenever you enter into a contract, please do check that there is a dispute resolution clause, because ultimately when there will be a dispute, you have no mechanism to solve that dispute. In the later section, I will tell you how do you even draft those clauses, because I have seen actually a lot of lawyers, they don't include dispute resolution clause. They don't know how to include because they have not learned it. I don't want this to happen with you. Okay, I want that in future if you make a contract for your clients, you must be aware what things should be included, especially dispute resolution clause. I'll talk later about it in detail. Another type of contract apart from employment agreement is the service provider agreement. Now in the business transactions में क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी को वो इट्स नॉट वेल वर्स्ड इन एवरीथिंग, वो अपना स्पेशलाइजेशन में काम कर रही है. मान लो कि एक लीगल ही कंपनी है, एक लीगल कंपनी, ठीक है, उसको अगर किसी दूसरी कंपनी से सर्विसेज लेनी है, सर्विसेज जैसे कि उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है उसकी कंपनी की, तो ऐसी कंपनी को ढूंढेगी वो जो कि एक्सपर्ट्स है उस फील्ड में, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, उनके साथ जब वो कोलैबोरेशन करती है तो देयर हैज टू बी अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट और अ कोलैबोरेशन अग्रीमेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट होते हैं जिसमें बोथ पार्टीज डिसाइड व्हाट वन विल डू फॉर द अदर, व्हाट विल बी द कॉम्पनसेशन, और जैसे नोटिसेस कैसे होंगे. देयर आर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें नोटिस क्लॉज होता है. दैट मीन्स कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई चीज़ का नोटिस देना चाहती है, नोटिस इन द सेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, ओके, सो व्हाट विल बी द प्रोसीजर? इट विल बी सेंट ऑन ईमेल, इट विल बी सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ऑन व्हाट्सएप और एनी अदर मीडियम that has to be mentioned. So we will talk about what are these essential clauses in the later section. But in this section, I want you to understand different types of contracts. Okay. The next type of contract is the franchisee agreement. आप लोगों ने सुना ही होगा franchisee agreements में, जहाँ पे जो एक पार्टी होती है, जो franchisee होती है. Franchisee in the sense the party who wants to take the franchise of a particular brand for big company. ओके, तो दे हैव टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे जो फ्रेंचाइजर होता है, जो फ्रेंचाइजी देता है किसी पर्सन को, ठीक है, उस पर वो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं. कैसे कि ड्यूरिंग दिस फ्रेंचाइजी आपको हमारे जो रूल्स है उससे एडहेयर करना पड़ेगा, हमारी जो रेसिपीज है फॉर एग्जांपल उनको एडहेयर करना पड़ेगा, एंड देयर वुड बी वेरियस अदर थिंग्स in the franchisee. For example, where you will conduct your business, what is the manner in which you are going to deal with the clients, deal with the customers, and also such clauses that you won't do anything that would jeopardize our reputation. The company who is giving the franchisee to any other so and so individual or a particular company has to be very cautious that their reputation is intact, their IPR rights is intact. So IPR कैसे that the company who is giving the franchisee can tell the other person that आप आपके खुद के नाम पे हमारे goods sell नहीं कर सकते. If you're selling our goods, our company's goods products, then you have to see कि हमारा नाम उस पे है. आप किसी दूसरे पर्सन को खुद को या किसी दूसरी बिजनेस को हमारे गुड्स लेके प्रमोट नहीं करना. So there has to be IPR rights also with confidentiality provisions. You will not disclose so and so details about our clients, about about our formulas, recipes to any other people with third parties to इसमें contract में party नहीं है. Hopefully you are understanding this. ठीक है, हो सकता है कि you are from various people are from first year, थोड़ा सा difficult हो सकता है आपको समझने के लिए, but I'm trying that आपको समझ आए basic चीजें जो हैं. ठीक है, see once you get into industry, you can face these contracts on a day-to-day basis and you can master the skill. But for the time being of getting an understanding how you can
ड्राफ्ट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपसे कल कोई आगे पूछेगा कि मे बी द क्लाइंट कि हाउ से कॉन्ट्रैक्ट मुझे ड्राफ्ट करना है, एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन, थोड़ा सा एडवाइस करो ना, कैसे क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, तो आप क्या बोलेंगे? तो इट्स आई एम जस्ट ट्राइंग कि यू हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप उसमें क्लाइंट को कुछ एडवाइस कर सकते हो, ठीक है। नाउ द अदर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में बात करी है, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो फ्रीलांसिंग करते हैं एंड दे वांट टू मेक श्योर कि उनकी सर्विसेज का मिसयूज ना हो, सो दे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट्स फॉर whom they are working, और उनको हर एक चीज क्लाइंट को मुंह से बोल के बताना नहीं पड़े, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम जब क्लाइंट के साथ काम करते हैं एज अ फ्रीलांसर, तो हर चीज बोलना और बताना इट्स नॉट कन्वीनियंट, एंड बोलने में बहुत सारी चीजें सही भी नहीं लगती। देयर इज अ मेजॉरिटी चांसेस ऑफ हैविंग डिस्प्यूट्स इन द इनिशियल स्टेज। तो हम ये इंश्योर करें कि जब हम एक फ्रीलांसिंग अग्रीमेंट बनाए तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही बना दें। मतलब फ्रीलांसर क्या करे, अपना टर्म्स एंड कंडीशन कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस वर्क के लिए इतना कॉम्पनसेशन मिले, मैं इतने आवर्स काम करूंगा तो मुझे इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर आपको बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो आपको मुझे नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट टू फॉर 15 डेज प्रायर नोटिस या 30 डे प्रायर नोटिस। अगर आप बिना रीजन दिए कैंसिल करते हो तो आपको मुझे उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। आपके कारण मेरा कुछ लॉस होगा तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। फिर कुछ भी वेरियस थिंग्स। अब आप सोचो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता फ्रीलांसर और क्लाइंट के बीच में तो कितनी चीजें डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है। और अगर मान लो कोई डिस्प्यूट आता भी है which arise out of the contract, then if you have a valid agreement जिसपे कि दोनों के साइन, दोनों पार्टीज के साइन, जो क्लाइंट और फ्रीलांसर दोनों के साइन, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक क्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन मेक इट एनी वे यू वांट, यू नो, इफ लाइक यू आर प्रिपेयरिंग अ फूड, ठीक है, उसमें आप अपना स्पाइसेस मन के स्पाइसेस डाल सकते हो, जो जैसे क्लॉजेस चाहिए वैसे आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। वैसे ही आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इट्स यू कैन क्राफ्ट इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है ज्यादा हायर अपॉर्चुनिटी व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, यू आर अ क्लाइंट, है ना, जैसे आप क्लाइंट के केसेस बात करो, लॉयर को बीच में नहीं लाते। एक दो क्लाइंट मतलब दो लोग हैं, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी जो है उसको इस ट्रांजैक्शन में एंटर करना है तो दूसरी पार्टी के साथ, और उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब वो एंटर होंगे तो उसमें उनको बहुत सारी टेक्निकलिटीज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ I'm going to tell you this technicalities further, but उससे पहले एक चीज और बची है, जैसे कि apart from the freelancing agreement, there are privacy agreements and terms and conditions agreement. आपने ये देखा होगा कि आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स बनती है, ठीक है, हर कोई आज वेबसाइट्स बना लेता है ना। So when you make these websites or any applications, then आपने देखा होगा कि आप जब उस पे साइन अप करते हो एज अ कस्टमर, यू हैव टू टिक द चेक बॉक्स व्हिच सेज कि यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। आप लोग पढ़ते भी नहीं हो, पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं ना, या आई कैन सी द स्माइलिंग फेसेस। तो आंसर के जरूरी नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं, वी नो, हम इतना कौन पढ़ेगा, हमको उसको साइन अप करना है, वी गो एंड वी रजिस्टर, वी मेक अ अकाउंट। बट कभी ध्यान से जाके देखना कि उसमें कैसी कैसी चीजें होती है, कि एक बार उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज अगर हो तो वो जाके देखना। आपको पता भी नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन कैसे यूज होती है। बहुत ही कम ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे जो अपना जब वेबसाइट बनाते हैं तो प्राइवेसी कंडीशन, प्राइवेसी लॉज की को अडहेयर करते हैं। सो जैसे कि देयर आर प्रैक्टिस प्राइवेसी कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे पास प्राइवेसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं, तो वी एंश्योर कि उसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन के लिए अलग से रूल्स बनाए गए हैं एक्ट के अंदर, वो फॉलो हो, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर तक ये मतलब उनको कस्टमर को ये बताएं कि आपकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से यूज हो रही है। पहले तो क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, दूसरी चीज किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन यूज हो रही है।
एंड अगर आपकी इंफॉर्मेशन वो थर्ड पार्टी से शेयर कर रहे हैं, वो मेंशन करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर उन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेशन नहीं बनाए, देन इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी प्राइवेसी